Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam. Okay, students, we'll wait for your classmates to join another 5 minutes and then we can continue. Okay, that's a sufficient amount of wait that we have waited for your classmates to join in. I think this could be the reason could be that because you are in a habit of using Google Meet only. So some of you might be downloading Teams and learning how to use it. So that could be the reason for the delay. Now let's move forward. Okay, could you please confirm in the chat box that I'm audible? A simple yes would suffice so that I know I'm not talking to myself only. आप एक yes लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा. Yes, ma'am. Right. And you can, give me a thumbs up even. That also tells me that you're there. Okay, so I'm audible. This is being recorded as well. If some of you are facing any kind of issues or problems with the voice quality or distortion or not being able to join in, this is being recorded. And today we have a advantage that we can use report writing or I mean we can use the multimedia in such a manner that I can quickly give you a review of report writing once more. I remember I told you about the components of report writing and what should be included and how it should be included. Walaikum assalam, Shanze. Now let's move forward to the basic understanding and the definition that is available in different books and places. The first one is that report how and why it is important. It's a very important tool of communication within the organization and outside organizations as well. Without the report writing, none of the records can be retained, and report has always been there in form of different ways, such as long report, short reports, formal reports, informal reports, and other than that there could be verified reports, unverified reports और इसके बहुत सारे binaries यानी बहुत सारे differences, different types of reports could be there. ठीक है, what is a report? It's a well organized piece of written material and spoken material as well. Report writing, जब writing आ जाता है तो yes we are concerned with writing, but report can be given in oral form as well, such as in the news channels you always see people um,
within that live place or live reporting भी होती है, but we are concerned with writing, so we'll focus on report writing only. Now, a report can be defined as a declarative statement or an account of an event, or some kind of observations and recommendations could be recorded in that report as well. Um, a report can be written by one single person, and a group of people or a committee can write a report as well. ठीक है, वो डिपेंड करता है रिपोर्ट्स। बहुत कोई ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटे, ये फ्लूइड कॉन्सेप्ट है, फ्लक्चुएट करेगा, कि डिपेंड करेगा कि कहाँ कौन क्यों किस सिचुएशन में लिख रहा है, उस पे ये डिपेंड करेगा। Right, basic structure of a report could include introduction, middle part and conclusion, like any other write-up. किसी भी write-up में या spoken में हमारे पास introduction, spoken और conclusion होता है, और report writing में भी ऐसे ही होता है। Basically, a report includes the order of events. Event क्या होता है? कोई भी happening। मैंने आपसे event report की discussion भी की थी, लेकिन आज जो मैं आपको report बताऊंगी, that is quite different. That is an office report that is written by a subordinate to the office administration to take some steps for it. तो इसमें different किस्म की report structures, formats available हो सकते हैं। 2-3 formats भी आपसे मैं share करूंगी, और ये भी clear करूंगी कि which one you should focus on in which situation. Depending on the question, you will pick up one research फॉर्मेट। जब भी आपने ये सेलेक्ट करना है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास किस किस्म की रिपोर्ट है। Your report should always be complete, concrete, correct and clear. इसमें ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है, और it has to have the organization that makes sense to the audiences. अब आपको बेशक समझ आ रही हो, लेकिन आपको ऑडियंस ओरिएंटेड होकर लिखना है और वेल स्ट्रक्चर्ड लिखना है। और क्रिस्प का मतलब, जैसे उस दिन भी शायद हमारी बात हुई थी, आप ही से हुई थी मेरी बात, कि जितनी कहानी मसाला लगाकर बताई जाती है, जितना उसे सेंसुअल बनाया जाता है, उतना आज के दौर में उसको समझा जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे फैब्रिकेट कर दें या झूठ कह दें, लेकिन देयर शुड बी सम कैची फ्रेजेस, और कैची सबटाइटल कैन बी गिवन फॉर द पीपल टू बी इंटरेस्टेड। तो क्रिस्प इस तरह से उसमें किया जा सकता है। इफ यू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, किसी भी कंपनी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, किसी भी कंपनी को लॉसेस और गेन्स को रिटेन करने में हेल्प करता है। रिपोर्ट के बहुत सारे यूटिलाइजेशंस हैं। If we talk about characterizations or characters of report, so there shouldn't be any grammatical mistakes. It should be relevant. It should be clear, concise, precise. It should have authenticity. Precision should be there. Simple academic language should be used, and only facts should be written. ऐसा कुछ नहीं लिखना है जिसमें आपका पर्सनल ओपिनियन आ जाए। The language shouldn't be decorated, और किसी किस्म की confused या confusion वाले words नहीं लिखने चाहिए, ambiguous language नहीं use करनी चाहिए। और reader orientation, like I told you, it is very important कि आप अपने reader को mind में रखते हुए इस report को लिखें। उसके बाद arrangement यानी organization is important and clarity is important. Now let's take a look at some types. Formal reports are there, which are very complicated, expensive, and long in nature, and they are time consuming as well. However, it includes explanations, reference lists, or links, and immense researches could be included in it. This is some basic structural points of a formal report, where we have a cover, a title of the report, table of content, summary, जिसे executive summary भी कहते हैं, abstract भी कहा जाता है, synopsis भी कहा जाता है, then introduction, then comes the discussion, conclusion, appendices and reference and bibliography. इसके अलावा भी बेटे इसमें और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक बेसिक तरीका है। Another type is informal reports. Informal reports are less expensive, less कॉम्प्लिकेटेड, और ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं डेली टू डेली टास्क के लिए। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स को यूज़ करना
ज़्यादा आसान है बिकॉज़ इट इंक्लूड्स लेसर कंपोनेंट्स एंड लेस रिसर्चेस इन्वॉल्व्ड इन इट। इसमें वो वाली बात नहीं है कि ऑफिशियल लेटर और पर्सनल लेटर, कि पर्सनल लेटर हम अपने खून से अपने आशिक को लिख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल रिपोर्ट हो जाएगी। नो, इनफॉर्मल रिपोर्ट भी एक ऑफिस सेटिंग में ही लिखी जाती है, लेकिन इसके सेक्शंस कम होते हैं, ठीक है? और एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल यूज इट इन अ डिफरेंट मैनर। नाउ इफ यू लुक एट a format of a report, तो ये एक बेसिक वे है कि आप उसमें हेडर ऐड करें, डेट ऐड करें, सब्जेक्ट हो, बॉडी यानी उसमें सारा डिस्क्रिप्शन हो, सजेशन हो, एंड देन क्लोजर हो। और ये हमारे जो बॉडी पार्ट है पूरी रिसर्च का, उसमें फाइंडिंग्स और कंक्लूजन, सजेशंस एंड इंट्रोडक्शन तो होता ही है। नाउ दिस इज वन सैम्पल रिपोर्ट दैट आई वांट टू शेयर विद यू। दिस इज द क्वेश्चन। It says draft a report on dilapidated condition of the building of your business establishment. Give suggestions about resolving the difficult situation. Dilapidated का मतलब होता है neglected, broken, खस्ता हालत है। उर्दू में होता है ना कि कुछ बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत टॉर्न आउट हो जाती है, worn आउट हो जाती है, जंग लगा होता है, सीमेंट जगह जगह से खराब हो जाता है एंड ऑल दैट। तो इस तरह की बिल्डिंग के बारे में रिपोर्ट लिखनी है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस रिपोर्ट को लिखने का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसमें सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा। डेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, जस्ट रिमेंबर दैट। देन जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, अगर उसका फोन नंबर है, एड्रेस, वो सब लिखना होगा। एंड देन सब्जेक्ट लाइन शुड बी देयर, डिलैपिडेटेड कंडीशन ऑफ आवर पठानकोट ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, और उसके बाद आप सीधा सीधा रिपोर्ट पर चले जाते हैं। डियर सर, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड अबव। आप देखिए वो दोबारा नहीं कह रहा है कि I am writing this report to draw your attention to the dilapidated condition of our Pathankot office that is going through this and that. No, उसने बिल्कुल specific बात की है कि regarding the subject specified above, I wish to submit the report as under. And I would personally recommend कि wish का word इस्तेमाल ना किया जाए, सीधा सीधा लिखा जाए I am submitting और I submit the report under, और उसने अपनी findings सीधा सीधा लिखा, यानी सबूत दिया कि क्या मसाइल है। नंबर वन, our office building is more than 20 years old. No repair has been made during this time. The roof is supported by wooden planks and crumbling pillars. During the rainy season, the roof leaks, causing inconvenience to the staff members. Often, precious documents lying on the tables get damaged. The floor is full of potholes. When the roof leaks and the potholes are filled with muddy water, moisture has seeped into the walls. अब ये उसके findings है सारे, ठीक है? अब वो देता है suggestions. The office should be temporarily shifted. The present building should be pulled down in a larger interests of the staff and the public. A new building should be built at its place. Our present premises have no provision for parking of vehicles. By selecting the new site, the need for a parking slot must be taken into consideration. देखिए, फाइंडिंग में उसने ये नहीं कहा था कि पार्किंग भी नहीं है, लेकिन सजेशन में वो ये कह सकता है क्योंकि वो कह रहा है एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो इस तरह से आप बहुत सजेस्टिव हो सकते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग में। आप प्रेजेंट प्रेमिसेस आर करंटली लोकेटेड, we should shift to the new place only temporarily. A builder should be given the job of erecting a modern looking complex here with all the basic amenities and etc. This is being submitted for your kind attention and prompt action, sir. Reported by the manager and etc. तो देखिए कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की। उसने ये नहीं लिखा अस्सलामुअलैकुम डियर हेड, आई एम होपिंग योर बखैरियत बखिदमत, क्या लिखते होते हैं आप उर्दू में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ऐसा कुछ नहीं लिखना, कोई पर्सनल बात नहीं लिखनी है, कोई हाल अहवाल नहीं पूछने हैं। सीधी-सीधी बात करनी है कि जी ये मसाइल हैं और ये सजेशन है। तो एक रिपोर्ट जो जिस तरह से लिखी जा सकती है, इन हाउस रिपोर्ट, वो इस तरह से लिखी जा सकती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव ट्राइड टू शेयर विद यू। समझ आई बेटे? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब आपके पास थोड़े से 2-3 मिनट हैं, आप सोचें, दोबारा सोचें कि मैंने आपसे क्या शेयर किया है। अगर कोई सवाल माइंड में आता है तो आपने मुझसे पूछ लेना है।
Okay, I think there is no question. Is there any question बेटे कोई सवाल है तो बताएं. No, ma'am. ओके, बेसिकली ये एक ऐसे ही कह लेंगे एक किस्म की रिवीजन थी. हाउएवर एक डिफरेंट टाइप की आपके साथ मैंने शेयर कर दी इवेंट रिपोर्ट. अच्छा, एक टेम्पलेट है ये इवेंट रिपोर्ट का, ये आपने उस दिन भी देखा था. ये बहुत इजी है टू रिमेम्बर. देखिए इसमें नेम डेट और ये सारी इंफॉर्मेशन है. और एक ये है पोस्ट इवेंट रिपोर्ट. ये बहुत आसान है फॉर यू टू रिमेम्बर. ओके, कुड यू प्लीज कंफर्म दैट यू कैन सी a post event report template in front of you on this Yes, on ma'am. this. Okay, सो आप देखिए इवेंट टाइटल यहाँ पर ऐड किया जा सकता है जो भी उसका नाम है. फिर Yes, बेसिक्स ma'am. में डेट टाइम लोकेशन अटेंडेंस. अब समरी में यू बेसिकली गिव डिस्क्रिप्शन. अब इसमें हेडिंग्स भी हैं लेकिन उस दिन हमारी जब बात हुई थी आई टोल्ड यू नॉट टू गिव हेडिंग्स. तो उसकी जगह आप सीधा सीधा इस सीक्वेंस में स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इसका पर्पस क्या था, क्या क्या वहां पर अवेलेबल था, कौन कौन आया था. एंड देन यू कैन डेफिनेटली गिव हाईलाइट्स ऑफ द इंटायर इवेंट. अब अगर कोई बुक फेयर है तो उसमें सबसे अच्छी चीज क्या थी कि मे बी देयर वाज अ
children corner where children were performing and you liked that the most, and why did you like and why did you feel like it was the best or successful part of the entire book fair? Because everybody or most of the crowd was rushing towards that corner and they were actually paying for it. अगर आपने कुछ ऐसा भी बोलना है ना कि कोई एक सेक्शन उसमें इवेंट में सबसे अच्छा था, तो उसके लिए भी रीजनिंग प्रोवाइड करनी है। देन रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर इवेंट्स, कि अगर कोई मिसहैप हुआ, मतलब स्पेस कम पड़ गई या स्पेस बहुत ज्यादा है और लोग कम आए हैं, ऐसा कोई भी मिसमैच हो, तो you're supposed to note down that here recommendation में। फिर ये वेंडर्स वाला सेक्शन आप रहने दे सकते हैं और पेमेंट्स वाला भी। वाई? बिकॉज इट इज फॉर दोज जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, तो ये दो सेक्शंस आपने रहने देने हैं, रेवेन्यू भी रहने देने हैं। हाउएवर सेटअप की बात हो सकती है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में ही इसकी बात कर लेंगे। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इवेंट स्केड्यूल एंड टाइमलाइन, ये भी इंट्रोडक्शन में ही बात हो जाती है, ब्राउशर में लिखी होती है, एंड सम इश्यूज। तो ये एक टेम्पलेट और है जो कि यूज हो सकता है फॉर राइटिंग पोस्ट इवेंट रिपोर्ट्स, बहुत कॉमन है। ठीक है, ये दोनों आपने देख लेने हैं और यही बस मैंने आज आपसे शेयर करना था। आई डोंट वांट टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली जो हमने बात करनी है, दैट इज अगेन गोइंग टू बी रिलेटेड टू रीडिंग स्किल, दैट इज paraphrasing and summary writing, क्योंकि बहुत basic concepts हैं। Have I shared something about it already with you guys on campus? I think I can recall कि मैंने आपको बता दिया है। Did I share something? नो मैम। Hmm. वो एक comprehension chapter मैम। था। There was this comprehension chapter in which there was a section of summary writing, but it's we have to discuss these two techniques separately as well. So in the next class when we meet, we are going to talk about it, right? And I'm going to post a chapter for you to bring in the class. तो वो आप लाएंगे तो हम बहुत quickly कर लेंगे, just like the other chapters we finished on campus. We'll meet on Thursday, I believe. Meanwhile, we are still left with quite a long time. तो इसमें हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि मिड टर्म में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, या आपने क्या मतलब किस तरह से अटेम्प्ट करना है और क्या कुछ होता है। वेल, इन द मिड टर्म you'll have like 2 questions, 15 marks each। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, नॉट 15 मार्क्स, यानी सब कैटेगराइजेशंस हो सकती हैं योर फ्रॉम फंक्शनल इंग्लिश। ठीक है, फंक्शनल इंग्लिश में 15 मार्क्स वाला चक्कर नहीं है। योर पेपर इज क्वाइट इजियर, इट्स डिफरेंट। सो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। So your paper will have 3 questions, and within the 3 questions, certain sub parts could be there. Definition level भी हो सकता है, जैसे जैसे क्विज हुआ था आपका, या कोई राइटिंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया, कोई रीडिंग प्रोसेस डिस्कस किया हो, तो उस तरह से हो सकता है। फिर आपने पैराफ्रेजिंग, तो अभी हम रहते हैं, पैराफ्रेजिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, समरी राइटिंग से भी आ सकता है, मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस, पैराग्राफ राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट स्किमिंग एंड स्कैनिंग, वो जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उसके सब पार्ट्स एंड पार्ट्स बनकर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा सब हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई, दैट यू विल हैव 3 questions, and within the 3 questions there could be a number of choices given. Choices in the sense कि sub categories might be given, but there is no optional question in the examination. सारे सवाल मैंडेटरी हैं और सारे सवाल बेटे आपने जो है ना वो आंसर शीट पे ही अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है अपार्ट फ्रॉम योर नेम एंड रोल नंबर। एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न कि क्या कुछ आएगा, तो अभी तक जो हमने मेजरली जितनी डिस्कशन की है लैंग्वेज स्किल में, उसमें हमने फोकस किया है रीडिंग और राइटिंग स्किल पे। तो वही हम उसी से हमने तैयारी करके क्लास में जो क्लास में डिस्कशंस होती रही हैं उसी से तैयारी करनी है। और अनसीन पैराग्राफ भी हो सकता है, सीन पैराग्राफ भी हो सकता है। अच्छा, somebody just posted that they want me to mark their attendance। तो बेटे ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहा है। आई विल शेयर इट विद योर CR वंस वी आर डन विद द क्लास। तो अगर आपने एक दफा 2 सेकंड के लिए भी क्लास ज्वाइन किया तो आपका नाम मेरे पास आ चुका होगा। सो इन द मिडल ऑफ द क्लास attendance की बजाय I think one should focus on what is being said, and the attendance could have been a secondary place. But I understand
प्राइमरीली तो हम अटेंडेंस में ही इंटरेस्टेड होते हैं। चलिए कोई नहीं। मैम एनीवे, मैम ये गोइंग बैक रिपोर्ट टू की जो मैम मिड टर्म में ये सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ बेटे बताओ, क्या कह रहे हो रिपोर्ट राइटिंग को? मैम ये कह रहे हैं कि जो आपने रिपोर्ट राइटिंग की दो बताई हैं, पोस्ट इवेंट रिपोर्ट और दूसरी, तो ये आपने गूगल क्लासरूम पे भेज दी? जी जी, पोस्ट हो गई है, देख लें आप। नहीं हुई तो मुझे बता दें, मैं कर देती हूँ। रिपोर्ट राइटिंग का एक सेक्शन होगा बेटे, उसमें ये लिंक्स पेस्टेड होंगे। मैम आपने जितनी पीडीएफ भेजी उनमें से कुछ कुछ से किसी से भी आ सकता है ना, किसी पार्ट से भी? Absolutely, bete. Which videos are you referring to? Did I send you videos? Which videos? मैम वीडियोस नहीं, पीडीएफ। ऑब्वियसली। देखिए, आपने पीडीएफ्स को काउंट करके तैयारी नहीं करनी है, दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपने कॉन्सेप्ट को फोकस करके चलना है। आपने अपनी आउटलाइन देखी है? चले मैं आपको आपकी आउटलाइन दोबारा दिखाती हूँ। इफ यू लुक एट योर आउटलाइन, उसके हिसाब से आपने कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए जाना है। बाकी जो भी एक्सरसाइजेस या मटेरियल दैट आई ब्रिंग इन द क्लास, दैट इज ओनली देयर टू एड दैट कॉन्सेप्ट। आपका फोकस क्या है? कॉन्सेप्ट। उससे रिलेटेड मटेरियल कहाँ पोस्टेड है? क्लासरूम में। इस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी। आपने पीडीएफ को काउंट करके नहीं पढ़ना, वो फिर आपको कंफ्यूज करेगा, या आप कुछ और ही पढ़ाएंगे और पढ़कर कुछ और ही आना था। एक मिनट, लेट मी अटैच मैम योर। ग्रामर का पोर्शन कौन कौन में से आएगा? क्या 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 आएगा ग्रामर के पोर्शन में से? जो जो बिटे पोस्टेड है, आपने 500 स्पीच किए होंगे, राइट? तो वो भी मैं जो पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं आपको भी आपकी लिस्ट दिखा दूं, एक सेकेंड। ओके मैम। और मैम टोटल मार्क्स बता दें कितने मार्क्स का है? पेपर बेटे मिड टर्म आपका 30 नंबर का है। आप लोग आउटलाइंस नहीं ना खोल के देखते, मतलब पता नहीं। चलो कोई नहीं बे, तो मुझे याद है पहले 6 क्लासों में मैं यही बोल बोल के थक गई कि ये डिवीजन है। बट आई अंडरस्टैंड सम ऑफ यू विल नेवर फोकस, नहीं सुनेंगे आप लोग। चले बेटे, दिस इज योर आउटलाइन एज यू कैन सी। देखिए ये वीक है। मॉड्यूल का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि किस तरह से सेक्शंस बने हुए हैं। तो पहला मॉड्यूल जो था हमारा, यानी फर्स्ट 2 वीक में वी वर सपोज टू टॉक अबाउट हाउ द क्लास एंड एवरीथिंग इज कंडक्टेड, एंड सर्टेन इंट्रोडक्टरी information was shared with you, that how 4 components or 4 language skills are there and they are इंटीग्रेटेड। तो ये आपका पहला मॉड्यूल है जिसको आपको पता होना चाहिए कि ये चारों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और इंटीग्रेटेड क्यों और कैसे होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है सेकंड, दैट इज रीडिंग मॉड्यूल। इसमें हमने SQR 3R के बारे में बात किया, स्किमिंग स्कैनिंग के बारे में बात किया, एक्टिव रीडिंग, क्रिटिकल रीडिंग के बारे में बात की। We also talked about to skim, to scan, to purpose, to infer, to deduce, or to create responses to the texts. हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन की भी बात की, हमने क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन की भी बात की। अब बस मैं आपको जो सेक्शन रह गया, पैराफ्रेजिंग एंड समराइज, वो आपको एक बताने वाली है। तो ये रीडिंग मॉड्यूल भी आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आ जाता है राइटिंग मॉड्यूल, जिसमें राइटिंग प्रोसेस मैंने आपसे शेयर किया कि हाउ राइटिंग प्रोसेस कुड बी देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्व सच एज जनरेटिंग आइडियाज, ड्राफ्टिंग, रिविजन, एडिटिंग एंड देन दी पब्लिशिंग पार्ट। तो उसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू राइट रिपोर्ट्स। मैंने आपको पोस्ट इवेंट के बारे में बताया, कमेंट्रीज के बारे में नहीं बताया। तो आपने इवेंट पे फोकस करना है फॉर दिस मिड टर्म ओनली। मैम जब हम ये इसके बारे में और बात कर लेंगे तो यू कैन टॉक अबाउट कमेंट्रीज, वो फाइनल टर्म में ऐड हो जाएगा। हाँ बेटे बताओ। मैम मैम ये जो पैराग्राफ वगैरह है, ये भी इसी राइटिंग मॉड्यूल में आते हैं ना? एब्सोल्युटली। देखिए ऊपर देखिए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तब आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। बेस अब उन्होंने कुछ टॉपिक्स ही दे दिए कि राइट्स, बिलीव्स एंड सोशो पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये हम बात कर चुके हैं। हमने थोड़े इजी टॉपिक्स लिए थे, हमने सोशल मीडिया करके ले लिया था, डिप्रेशन होगा या ऐसी टॉपिक्स पे बात कर लिया था। सोशो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे आई
usually do not conduct my classes because I have very limited and poor knowledge about them, तो वो मैं नहीं लेके आती। तो लेकिन मकसद यही है कि आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, डिस्क्राइब करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट भी बता दिया हुआ है, मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कॉज एंड इफेक्ट एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर ली हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टू राइट समरीज। मैं आपको समरी राइटिंग, सिंपल समरी राइटिंग बताऊंगी, लेकिन एक्सपोजिटरी एंड आर्गुमेंटेटिव जो है वो हम मिड के बाद ले जाएंगे, सो दैट एटलीस्ट मिड में आपका स्कोर अच्छा आ सके। एंड देन कैसे असाइनमेंट पे काम करते हैं, और ये मैंने बड़ी दफ़ा बताया है, यूजली इससे कोई सवाल एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे सो दैट यू नो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर मिड टर्म। और ये यहाँ पर मिड टर्म सेक्शन यहाँ पर लिखा, हाँ जी, आ जाता है। फिर हमारे पास बेटे बाकी जो 2 मॉड्यूल्स बचते हैं वो मिड के बाद आते हैं। हाउएवर जब मिड खत्म हो जाता है, एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, तो फाइनल टर्म में ना पूरी आउटलाइन से सब कुछ आता है। मतलब कि सब कुछ का मतलब ये है कि हर मॉड्यूल में से सवाल आता ही आता है, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स। जैसे लैंग्वेज स्किल्स इंटीग्रेटेड है, इसी तरह आपका पेपर भी इसी तरह से इंटीग्रेटेड है। बट मिड टर्म के लिए आपने ये यहाँ से वीक 1 से बेटे वीक 10 तक को ही फोकस करना है, और इसमें भी रिपोर्ट में आपने सिर्फ इवेंट रिपोर्ट्स को देखना है। समरी राइटिंग एंड पैराफ्रेजिंग को हम अब बस हमारा जो रह गया वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द मिड टर्म। ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि 20 मार्क्स आपके जो है वो इंटरनल के हैं, जिसमें आपकी क्लास एक्टिविटीज भी नोट करती हूँ, आपसे एक असाइनमेंट ली गई है और एक क्विज लिया गया, यानी मिड से पहले 10 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी असेसमेंट आपसे शेयर कर दी जाएगी। फिर मिड टर्म आपका 30 मार्क्स का होगा और एंड टर्म 50 मार्क्स का होगा। और एंड टर्म होने से पहले यानी फाइनल एग्जाम होने से पहले 10 मार्क्स की असेसमेंट फिर होगी, जिसमें एक प्रेजेंटेशन और एक क्विज होगा, जो कि मिड टर्म के बाद होगा। मिड टर्म से पहले जो जो आपकी इवैल्यूएशन मैंने आपसे रिसीव करनी थी वो मैंने कर ली है। हाँ बेटा बताएं। मैम मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे मैम, आपको शायद मंसूर ने बताया था कि काफ़ी बच्चे थे मैम जिनके वीडियोस इन्होंने बना के रखी हुई थी और अपलोड नहीं हो सकी थी। मैम आपने कहा था कि बाद में मैं देख लूंगी, तो वो कब तक हम अपलोड करें? देखें, आई थिंक यू आर राफे। वो जो जी मैं है ना, राफी हूँ। वो जो 4-5 बच्चे हैं ना, देयर ऑलवेज हैव दोज इश्यूज। आई जस्ट चेक्ड एंड मेजॉरिटी बच्चों की मुझे रिसीव हो गई है। कुछ ने कुछ गूगल क्लासरूम पे नहीं भी कर सके, तो उन्होंने मुझे एक्सेस भेज दी थी, तो मैंने उस तरह से भी मैम चेक मैंने, कर लिए। जी मैम बोलें प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ ने ईमेल के थ्रू एक्सेस में, वो जब एक्सेस आप मुझे देते हो तो मुझे ईमेल भी रिसीव होती है, तो मैंने उस तरह से भी चेक कर ली है। लेकिन देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जिनकी एक्सेस मुझे नहीं है, यानी आई हैव टू रिक्वेस्ट देम टू गिव मी एक्सेस। कुछ ऐसे हैं जिनके लिंक एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो इसी वजह से है कि उन्हें यूज करना नहीं आया। तो मैं रोज चेक करती हूँ। एज यू अंडरस्टैंड, यूर ऑलमोस्ट 35 to 40 स्टूडेंट्स, और रोज कम से कम मैं 10 वीडियोस ही देख सकती हूँ, एंड आई हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल। तो जैसे ही मेरे पास कंप्लीट पिक्चर होगी, तो जिनकी मेरे पास नहीं पहुंची उन्हें कोई और टास्क मिल जाएगा, कोई बात नहीं। बिकॉज आपका फर्स्ट टाइम था, तो यू मैम विल बी गिवन थैंक यू सो मच। अनदर चांस टू इम्प्रूव योर स्कोर्स। ठीक है, वो हो जाएगा, सो वो मच मैं मैम, आपको जैसे बता हमने दूंगी। मेल, आपको मेल रिसीव हुई होगी, मेल हमने कर दी थी, अपलोड नहीं की थी। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और विद एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी एल्स? ठीक है, और आई होप आपने अपनी क्लास को भी स्क्रॉल करके देखा है कि इस तरह से वीक वाइज आपके पास इंफॉर्मेशन अपलोडेड है। बेटे अगर आपको लगे ये थोड़ा ज्यादा है, तो सब कुछ नहीं समझना है। देखो, कोई ना कोई डेफिनेशन लेवल सवाल भी होगा, तो एप्लीकेशन लेवल सवाल भी होगा, कि हो सकता कहा जाए कि स्किम एंड स्कैन को डिफाइन करो, और ऑन द अदर हैंड ये भी लिखा हो कि एक पैराग्राफ और 4 सवालों का जवाब देना हो। तो आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि समझने के लिए प्रिपेयर करना है, रटा नहीं मारना। लेकिन डोंट मेक थिंग्स अप। आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ ऐसी बातें बना देते हैं। एक तो लैंग्वेज इशू तो है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, कि इंग्लिश नहीं आ रही है हमें, हमारी इंग्लिश में थोड़ा सा अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो वो हमने करनी है कि हम शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें और हमारे सेंटेंसेस मीनिंगफुल हों फिर।
जो भी हम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, इधर अभी मैं राइटिंग प्रोसेस भी पोस्ट कर दूंगी, तो ताकि आपको याद रहे कि वो भी पार्ट है इसका, समरी राइटिंग का, वो सब कुछ मैं अभी से अपडेट कर देती हूँ। और पैराग्राफ राइटिंग में आपने ये सब आई होप पढ़ लिया होगा, टॉपिक सेंटेंस भी देख लिया होगा, और पैराग्राफ का लेसन भी पढ़ लिया होगा। तो ये इस तरह से आपकी क्लास अरेंज हुई हुई है। अब अगर कोई सवाल हो तो बेटे आप पूछ सकते हैं। मिड टर्म की बस यही मैंने डिस्कशन करनी थी ना। आई विल नॉट बी doing this discussion again. Fortunately, this is being recorded, तो ये रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दी जाएगी। जिसे सुननी होगी वो आज 13 अक्टूबर है, उसको सुन सकता है, जितनी मर्जी बार सुन के गाइडेंस ले सकता है। मैम ये गूगल क्लासरूम में पोस्ट होगी? जी जी, मैं ना आपको अभी कुछ देर बाद ना इसको अपलोड कर दूंगी, तो लिखा होगा रिकॉर्डिंग ऑफ 13 अक्टूबर, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके मैम। हाँ, एक और कंसर्न है बेटे, कि अगर मुझे ये शिकायत मिली कि आपने मेरे पेपर में चीटिंग की है, चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, इन्विजिलेटर को आपने तंग किया है, आई टेक इट एज एन ऑफेंस। मैं ऑफेंड हो जाती हूँ इस बात से, तो वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये मैं आपको थ्रेट नहीं कर रही हूँ, बट देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। So at least in my course, do not cheat, do not bother the invigilator, do not create a ruckus, और प्लीज एक इंडिविजुअल, एक अडल्ट स्टूडेंट की तरह, यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट की तरह आपने आना है। वो जो भी आपका एक ऑरा है जो आपको अच्छा लगता है अपने लिए, अपने घर तक महदूद रखें बेटे। यूनिवर्सिटी इज एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, और उसमें उस तरह से ढलना एजुकेशन का पार्ट है, वो आपकी तरबियत का पार्ट है। तो ये आपने देख कर चलना है, और ये बड़ी सीरियस बात मैं कर रही हूँ, इसमें किसी को मैं पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है कि डू नॉट गेट कॉट चीटिंग इन माई क्लास और इन माई पेपर। दैट्स अ बिग फैलनी, मतलब मेरे लिए वो गुनाह, क्राइम और सब कुछ है, मेरे लिए वो बहुत ऑफेंसिव बात है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा एक चैप्टर था, आई थिंक आई डिड नॉट पोस्ट इट इन योर, आई डिड, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। डिड वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर इन द क्लास? आई थिंक वी डिड, बट अब मुझे आप कंफर्म कर दें। दिस वन, इट इज कॉल्ड रीडिंग बेसिक्स। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं, रीडिंग एक्टिवली, फाइंड द मेन पॉइंट। जी, डिड वी टॉक अबाउट इट? नो मैम। चलें ठीक है बेटे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपने ना ये ले आना। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें बहुत इजीली आपको याद रह जाता है कि मेन पॉइंट कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, सपोर्ट डिटेल क्या होती है, और इसके अलावा क्रिटिकल रीडिंग क्या है, एंड देन इसके अलावा रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है, SQ3R सर्वे वाले में ही आ जाता है, तो इसकी हमने प्रैक्टिस कर लेनी। कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर तो बेटे मैंने आपको असाइन किया था ना? यस, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर असाइन था आपको कि नहीं? नो मैम। नहीं हुआ हुआ, चलें फिर उसकी जगह नो यही मैम। कर लेते हैं, ये कर लेते हैं फिर, क्योंकि एक चैप्टर तो हमें इसमें से करना ही करना है। तो bring this chapter, this is posted here in week 3 to 4, it's called reading basics and there are 13 pages। तो इसको आपने प्रिंट करवा के नेक्स्ट क्लास में ले आना है, और हम फिर समरी राइटिंग और पैराफ्रेज राइटिंग इसी के टेक्स्ट को इस्तेमाल करके सीख लेंगे। we'll use the same text in order to learn summary writing and paraphrase writing as well। ठीक है, तो ये बेटे ये चैप्टर ले आना, नोट कर लेंगे। ये वीक 3 एंड 4 में रीडिंग बेसिक्स के नाम से पोस्टेड है, इसको आपने थर्सडे की क्लास में ले आना। ओके मैम।
और बेटे आपकी डेट शीट आ गई है? यस मैम आ गई डेट शीट। ठीक हो गया। तो व्हेन इज योर फर्स्ट एग्जाम? 23rd। 23rd, which means we are left with 2 classes only, 16th and 20th को हम मिलेंगे, तो हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट तब तक कर लेने हैं, ठीक है? तो ये चैप्टर ले आइएगा। ओके मैम। ओके मैम। अब और कोई बेटे सवाल हो तो पूछे प्लीज। मैम सब ओके है। चले देन, दिस इज योर लकी डे के ऑनलाइन क्लासेस जो हैं इसमें फिर मार्जिन नहीं बचता है, बिकॉज टीचर ज्यादा ही बोल जाता है, आप लोग फिर सिर्फ सुनने वाले बन जाते हैं। So I'll be ending your class only this time because I need to eat something. I've been taking classes since 8. So I'm too hungry now. So I'm leaving you 15 minutes early. Allah Hafiz. Take care. अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह you, हाफिज। ma'am.